میجورٹی جو اگر آپ دیکھیں ریزنز آف آسکنگ فار ڈیورس میوچلی وہ یہی ہیں ڈومیسٹک وائلنس، تھیفٹ، اور تیسرے نمبر پہ ہے انفیڈیلٹی. فائنینشیل جو ہے وہ بیسکلی کرپل ڈاؤن کرتی ہے آپ کی میرج کو، اور اس کے علاوہ دیر از اے لاٹ آف مسٹرسٹ. وہ ایک جینڈر میں نہیں ہے، وہ دونوں میں سمہاؤ ہے، نظر آ رہی ہے. یو نیڈ ٹو ہیو سم ون ٹو ٹاک ٹو ٹرائی اینڈ سارٹ دس آؤٹ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ 3 طلاقیں ایک بار نہیں دینی، اور اس کو جو طلاق کا طریقہ بھی ہے، کہتے ہیں ابغض الحلال عند اللہ الطلاق. اللہ کے نزدیک حلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ کام اگر کوئی ہے تو وہ طلاق. ہمارے 80% جو مسائل ہیں وہ کمیونیکیشن کا شکار ہیں، مس کمیونیکیشن کا. جب آپ نے سوچا ہی نہیں، آپ کے دماغ نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا، تو اب آپ کے دل میں جو آئے وہ کریں. پھر وہ جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ حیوانوں کی طرح لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. 35% اضافہ ہوا ہے طلاق کی ریشو میں. کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا وجوہات ہے؟ اچھا، اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں. ایک وجوہات ایک اس کی نہیں ہے. اس میں سب سے مجھے میجر ون از لیک آف ٹرسٹ اینڈ اکنامک. آئی تھنک وہ دونوں ایک ہی لیول پہ آئیں گے. جو اکنامک سچویشن ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ افیکٹ ہوئی ہیں فیملیز. دے آر انیبل ٹو، آئی تھنک بہت زیادہ لڑکوں سے بھی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے. ویئر اگر آپ جاب مارکیٹس دیکھیں اس میں جو منیمم ویج ہے وہ 17,000 ہے. وہاں پہ پھر ان کو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ گھر بھی چلائیں، رینٹ بھی دیں. سو وہاں سے آئی تھنک فائنینشیل جو ہے وہ بیسکلی کرپل ڈاؤن کرتی ہے آپ کی میرج کو. اور اس کے علاوہ آف کورس لائک آئی سیڈ دیر از اے لاٹ آف مسٹرسٹ اینڈ ڈس رسپیکٹ. اور وہ ایک جینڈر میں نہیں ہے، وہ دونوں میں سمہاؤ ہے، نظر آ رہی ہے، جو پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا امرین، اس میں جو آپ نے بڑی اہم بات ہائی لائٹ کی ہے کہ تنخواہ کم ہے لیکن لائف سٹائل آپ زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ایکسپیکٹیشنز کا بڑا مسئلہ ہے. سوشل میڈیا کے آپ کیا سمجھتی ہیں کتنا بڑا کردار ہے کہ مطلب اس پہ وہ دکھایا جا رہا ہے کہ پرتعیش لائف جو ہے وہ گزاری جا رہی ہے، فارن ٹور ہو رہے ہیں جناب، اس ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا جا رہا ہے. بے شک نارملی وہ ایک دوسرے سے بات نہ ہی کرتے ہوں، آئیڈیل تعلقات نہ ہوں درمیان میں. ہاں، آئی تھنک یہ جو ہے نا سوشل میڈیا کا جو امپیکٹ ہے اور بچوں پہ، ینگ مائنڈس پہ. ایک تو بچے بھی نارملی آپ کی 22 23 آپ کی شادی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جب آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں لائک یو آر سیئنگ، اس سے ڈیفینیٹلی افیکٹ ہوتا ہے اور ایڈورسلی یا نیگیٹیولی افیکٹ ہوتا ہے. مگر ایٹ دا سیم ٹائم اگر میں وہ کیسز بتاؤں جہاں پہ ڈومیسٹک وائلنس ہوا ہے یا جہاں پہ بچوں کو انڈر تھریٹ، جیسے کہ کووڈ کے ٹائم پہ بہت ایسے کیسز آئے تھے، سو اس میں پھر اویئرنیس بھی ہے. سو اٹس اے ٹو ایج سورڈ ان اے وے کہ کہیں پہ آپ کو ڈس انفارمیشن یا بیڈ انفلوئنس بھی ملتا ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو انفارمیشن بھی ملتی ہے جس سے یو اسٹینڈ اپ فار یور سیلف. دو دھاری تلوار ہے اور آپ پہ ہے کہ اب آپ اس کا استعمال کس طرح کرتے ہیں. پروفیسر صاحب، دین اسلام ہمیں اس میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں کیا بتاتا ہے حدیث کی روشنی میں، اور جو سرکار کا عمل ہے وہ ہمیں کس طرح سے گائیڈ کرتا ہے ہماری زندگی میں، اور یہ جو طلاق کے بڑھتے کیسز ہیں آپ کے نزدیک ان کی کیا وجوہات؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا اہم ایشو ہے جی آج کے دور میں، خاص کر کے یہ بہت زور پکڑ چکا ہے. بیسیکلی طلاق جو ہے لفظ، وہ استعمال یہ آپشن شریعہ کے اندر بھی اگر رکھی گئی تھی تو وہ اس لیے نہیں تھی کہ اسے سیپریشن ہو. اس کو تھوڑا سا ہم نے مس یوز کیا ہے کہ ہم نے صرف اس کو سیپریشن کے لیے استعمال کیا ہے، کیونکہ قرآن پاک کریکٹ کیجیے، حدیث مبارکہ کے اندر جو اس کا طریقہ کار بھی بتایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ کسی صورت بھی جب میاں اور بیوی کا نبھا نہ ہو رہا ہو اور اس درمیان میں صرف ایک آپشن دی گئی کہ آپ نے ایک دفعہ سنگل ایک طلاق کا لفظ استعمال کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ اس لیے ہے کہ جب دونوں کے اندر تھوڑے سے تعلقات کی دوری ہوگی تو وہ سمجھ جائیں گے اور پھر ان کو پتہ چلے گا کہ ایک دوسرے کی ضرورت کیا اور احساس بحال ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. نتیجے کے طور پر وہ پھر آپس میں بحال ہو جائیں گے. اچھا، سیکنڈ آپشن بھی رکھی گئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ 3 طلاقیں ایک بار نہیں دینی. اور اس کو جو طلاق کا طریقہ بھی ہے، کہتے ہیں ابغض الحلال عند اللہ الطلاق. اللہ کے نزدیک حلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ کام اگر کوئی ہے تو وہ طلاق ہے. بے شک. اب 3 طلاقیں حضور نے فرمایا اکٹھی نہیں دینی، اس لیے نہیں دینی ہے کہ اس کے بعد آپ کے پاس آپشن نہیں ہوتی. تو آپشن کا مطلب ہی یہی تھا کہ وہ خاندان ٹوٹے نہ. اچھا، تیسری بار کا جو اس کا ہے نا، وہ آپ اس کو 30% کا شیئر لے سکتے ہیں کہ انتہائی ناگفتہ حالات کے اندر جب نظر آئے کہ 2 فیملیاں اگر یہ ایسے ہی جڑی رہیں تو ان کے اندر مسائل اور زیادہ بڑھ سکتے ہیں اور کوئی نقصان کا خدشہ ہو سکتا ہے. ایسی صورت میں یہ اجازت دی گئی کہ اب ایک اچھے اسلوب کے ساتھ جو قرآن میں لفظ بھی استعمال ہوا ہے وہ تصریحٌ بِإحسان، کہ خوبصورت طریقے سے وہ بھی ہو، وہ کسی
नाचाकी की सूरत में हो, लड़ाई की सूरत में ना हो कि हमारा निवाह नहीं हो सका, ख़त्म, एक दूसरे की बुराइयां बयान करने और चीज़ें बयान करने और अदालतों में केस ले जाने से बेहतर है कि उसको आप घर पे बैठ के ख़त्म कर लें। तो शरीयत के अंदर तो इसकी गुंजाइश इस हद तक है सिर्फ। अब रहा इसके अंदर फैक्टर्स, तो जिस तरह बैरिस्टर साहिबा ने जिक्र किया कि मल्टीपल फैक्टर्स हैं, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो मैं कहूँगा वो ये है कि शरीयत के इल्म की बहुत कमी है। बिल्कुल लोगों के पास नॉलेज ही नहीं है कि आप अलैहिस्सलाम ने कैसी ज़िंदगी गुजारी। लेकिन ना कितनी आपने खूबसूरत बात की कि क्या हकीकत पन्हा है इसमें कि आप 3 तलाक़ें इकट्ठी मत नहीं दे सकते, आप एक एक करके दे सकते हैं और उसमें आपको एहसास भी हो सकता है, रियलाइजेशन हो सकती है, जरूरत एक दूसरे की। बिल्कुल, तलाक का जो वर्ड आप यूज करते हैं वो गुस्से की हालत में करते हैं। कहते हैं जी शैतान के पास, कहते हैं ना कि पूरा दिन जब ये जो मजमुआ सबसे ज्यादा खुशी भी इसी पे मनाता है कि वो पूरा दिन जब शाम को वो तख्त लगाता है, लोग आगे उसको सब शयातीन उसके खबर देते हैं ये किया, वो किसी से खुश नहीं होता, उससे खुश होता है उस शैतान। जब मिजान में ये वाली खबर डाली जाती है, कहता है कि हाँ जब मैंने आज 2 खानदानों को तोड़ा है, तो वो बहुत खुश होता है। तो इसलिए बुनियादी फ़लसफ़ा तो यही है कि इसमें जो हमारी कोर वैल्यूज़ है ना उसकी भी तो कमी है ना। हुल्म बुर्दबारी जो टॉलरेंस है वो नहीं है, ठीक है, वो हमारा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, जो फैसिलिटीज़ है ना उसकी कमी आ गई है आजकल के हवाले। अमरीन, आपकी जानिब आना चाहूँगी। अभी आप बात कर रही थी इसी ट्रस्ट इशूज़ हैं। अगर हम देखें लाहौर की अदालतों में 11,000 से ज़ायद केसेस हैं तलाक के, और वो अभी ऐसे ही पड़े हुए हैं, उसका कोई हल नहीं निकला, कोई सोल्यूशन नहीं निकला। क्या समझती हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का किस हद तक हाथ है इस सिचुएशन के अंदर? अगर आप ये जो लाहौर के केसेस की बात कर रही हैं उसमें मेजॉरिटी जो अगर आप देखें रीजंस ऑफ आस्किंग फॉर डिवोर्स या गोइंग फॉर डिवोर्स म्यूचुअली, वो यही है डोमेस्टिक वायलेंस, थेफ्ट, और तीसरे नंबर पे है इनफिडेलिटी। सो ये 3 रीजंस हैं जिनकी वजह से यू ऑप्ट फॉर। कोई भी आई डोंट थिंक जानबूझ के उस पे इस लाइन पे जाना चाहेंगे कि भाई उनका घर टूटे, अनटिल अनलेस कोई अनबेरेबल फैक्टर इन्वॉल्व हो। और इसमें आई लाइक टू ऐड कि ये इन फैक्टर्स के अलावा अगर आप देखें अनइमेजिनेबल काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट है दोनों साइड्स के पेरेंट्स की, जो ना चाहते हुए भी कुछ कपल्स वो अंडर प्रेशर, क्योंकि वालिद साहब ने कहा है या वालदा ने कहा है इसलिए तलाक दे रहा हूँ, विच इज़ एब्सोल्युटली अनफेयर। और सिर्फ लड़के के साइड से ये नहीं होता, लड़की की साइड से भी यही होता है। सो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये ऑब्वियसली आर देयर। एंड आई थिंक सेकेंडली हमें ट्रेन भी नहीं किया तो मेंटली, अब ऑल ऑफ अ सडन आपको एक शादी के बंधन में बांध दिया जाता है, मगर एट द सेम टाइम आपको आपने बड़ी अहम बात की है। ये भी बताइएगा कि शादी से पहले और बाद में कितनी काउंसलिंग की जरूरत होती है ताकि दोनों जो है ना जो कपल है उनका निभाव हो सके। देखिए, काउंसलिंग की इन द सेंस कि इट्स अ ह्यूज रिस्पांसिबिलिटी। ऑल ऑफ अ सडन व्हेन यू गेट मैरिड और उस वहाँ पे फिर अगर औलाद हो जाती है, लड़के के लिए और लड़की के लिए दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पांसिबिलिटी आती है, एंड अपार्ट फ्रॉम फिजिकल चेंजेस आपकी मेंटल चेंजेस भी आती हैं। सो उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम एक एज पेरेंट्स हमें अपने बच्चों को खैर इन कॉन्फिडेंस लेना चाहिए, एंड आपकी जो काउंसलिंग अगर है और अगर बड़ी अच्छे बुनियाद पे और अच्छे ऑन मेरिट काउंसलिंग है, यू सी, then yes, definitely you need to have someone to talk to try and sort this out. बिल्कुल ठीक। प्रोफेसर साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। मियाँ बीवी के रिश्ते में अकॉर्डिंग टू मी और बहुत से लोगों का भी मानना है कम्युनिकेशन बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत सारे मर्द हजरात बात करना पसंद नहीं करते, चीज़ें सॉल्व करना पसंद नहीं करते, खामोश हो जाते हैं जब भी ज़रूरत पड़ती है फाइट की या कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो कहते हैं कि भाई बाद में बात करेंगे, मैं बाहर जा रहा हूँ, तो बड़े गलत अंदाज में। तो क्या समझते हैं कि ये आंसर है मियाँ बीवी की तलाक तक बात ले जाने में, या कोई अलहदा से जो दरारें पड़ जाती हैं रिश्तों में, जो पैचअप नहीं हो पाता? जी बिल्कुल, ये फैक्टर है, और मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि ये मेजर फैक्टर है। उसकी वजह ये होती है कि ये 2 रिश्ते ऐसे हैं, अगर ये एक दूसरे को ना समझ सकें तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है इनका आगे चलना। शब रोज़ इकट्ठे गुजारने हैं, आपके पूरे ख़ानदान जो कि एक मुस्तकबिल है आपका, उसकी आपने परवरिश करनी है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए बात करना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन ना, ये वैसे भी एक जो जनरल नॉलेज की बात है कि हमारे 80% जो मसाइल हैं वो कम्युनिकेशन का शिकार है, मिस कम्युनिकेशन का। बिल्कुल, हम या प्रॉपर बात कन्वे नहीं कर पाते, या अगले बंदे को प्रॉपर बात समझ में नहीं आती और वो रिप्लाई कर देता है, और हमारे घरों की नाचाकियों का भी एक बड़ा सबब ये है। इसको तो मैं थोड़ा सा रिलेट कर दूं जो हदीस मुबारका की वो
जो निचोड़ है कि आप कोई भी जो बात है ना उसको बस वेट ना करें अगले बंदे का कि अभी बात मुकम्मल नहीं हुई और मैंने रिप्लाई तैयार पहले सुन लेना चाहिए किसी को, पहले सुन लें, पूरी तसल्ली से सुने, तहम्मुल मिजाजी से, फिर कुछ देर के लिए सोचें। आप अलैहिस्सलातु ने फरमाया कि जो सब्र है वो क्या, अस्सदमतु फिस्सदमतिल ऊला, जो मुसीबत आपके सर पे आ जाए या कोई बात आपके सर पे आ गई उसके इब्तिदा में चंद सेकंड के अंदर जो आप कंट्रोल करते हैं अपने आप को, ये सब्र है। अब आज की मेडिकल साइंस को भी आप ले लें तो वो ये कहते हैं कि आपके जो 4 यानी 3 पोर्शंस में इसको तकसीम करते हैं, तो लाशऊर तक आपके जो ले जाने के लिए जो आपका मैसेंजर है वो सिर्फ 30 सेकंड तक एक्टिव होता है। अगर आपने फौरी पहले ही बात को लेकर आप एक्शन में आ गए और रिएक्शन देना शुरू कर लिया तो आपका मैसेंजर जो है ना वो दिखाते भी हैं उसके अंदर कि वो रेड हो जाता है, यानी वो काम करना बंद कर लेता है। तब वो बात आपके लाशऊर में जाएगी तो आप सोचेंगे क्या? जब आपने सोचा ही नहीं, आपके दिमाग ने काम करना ही छोड़ दिया, तो अब आपके दिल में जो आए वो करें। फिर वो जो हम देख रहे होते हैं कि वो हैवानों की तरह लड़ाई हो रही होती है, गाली गलोच हो रही होती है, गुत्थम गुत्था हो रहे होते हैं, बच्चों का ख्याल नहीं करते, बच्चों के सामने जांगें हो रही होती हैं, गंदी गंदी गालियाँ निकाली जा रही होती हैं, ये सब तब होता है। तो कंट्रोल बेहतरीन तरीका ये है कि हमेशा जो आपने बात की, मैं तो कहता हूँ कि हमारे तो मसाइल का, हम तो मेजर मसाइल मिसकम्युनिकेशन का शिकार है। बिल्कुल ठीक आपने कहा प्रोफेसर, तसल्ली से सुन लें, तसल्ली से जवाब दे दें, बहुत सुन के रिप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर है। अमरीन, ये बताइएगा कि तलाक को रोकने के लिए, रिश्तों को बचाने के लिए ख़ानदान, फैमिली का क्या रोल बनता है, कितना किरदार वो अदा कर सकते हैं, सोसाइटी, माशरा हमारा कितना किरदार अदा कर सकता है? देखिए, अगर तलाक रोकना इज़ गुड फॉर बोथ ऑफ देम, ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या ये दोनों के लिए बेहतर है कि इनकी, वरना अगर तलाक ही एक आंसर है सारे प्रॉब्लम्स का तो फिर पहले वो तलाक के लिए ऑप्ट करें। अगर खैर अगर वो नहीं हो सकता, येस फैमिली हैज़ टू बी इन्वॉल्व, उनको बड़ों का बड़ा इफ़ेक्ट होता है जब वो बच्चों को समझाएं, मगर मुझे लगता है समहाउ अभी जो जैसे लाइक आई हैव सेड कि कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल नहीं आप प्ले कर रहे एज एडल्ट्स अपने बच्चों और बच्चियों की तरबियत में, और उसका जो इफ़ेक्ट है वो आपको नज़र आ रहा है कि शादियाँ टूट रही हैं और शादियाँ टूट रही हैं, और आप एक्चुअली इनकरेज कर रहे हैं कि फादर्स भी इनकरेज कर रहे हैं बेटों को कि हाँ इसको तलाक दे दो, मदर्स भी कर रही हैं, और लड़कियों के साथ छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो अदालतों में कि जी हमें कोई पैसे और बड़ा प्रोफेसर साहब आप भी इस पे अपनी राय दीजिएगा कि बड़ा नॉर्मलाइज कर दिया हमने अब इस चीज़ को ना। अमरीन की बात से ये नुकता निकलता है कि अब कोई मसला नहीं रहा, वो कहते हैं ठीक है जी आप अपना उठाएं सामान और आ जाएं। जो बात इन्होंने की है ना, ये शरीयत के अंदर प्रॉपर प्रिंसिपल दिया गया है कि अगर थोड़ी सी भी नाचाकी होने लगे तो एक बंदा औरत की तरफ से और एक मर्द की तरफ से, ये कुरान पाक ने भी तरीका सिखाया है और हदीस मुबारका में सिखाया गया है, वो दोनों बैठ जाएं और उनकी आपस में बातचीत करवा के उस बात को ख़त्म करें। क्या खूबसूरत बात, जब हमने अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने से इनकार कर दिया और उनको इंडिपेंडेंट कर दिया हुआ है, और जिस तरह शुरू में भी बात हुई कि काउंसलिंग ही नहीं है, किसी की ट्रेनिंग ही नहीं है, तो नतीजा यही निकलेगा। और उससे बढ़ के ये है बहुत सारे दीगर फैक्टर्स भी इसके साथ इन्वॉल्व होते हैं, जिसका शरीयत ने ये चीज़ें रखी इसीलिए थी कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि औरत जो है वो मर्द की पसंद और नापसंद का ख्याल करे, वो कहाँ पसंद करता है, जरा राय दे दीजिएगा बात करे कि क्या रवैया बेहतर करना चाहिए, तब्दील करना चाहिए मियाँ बीवी को। I would say respect. Please start respecting your. किसी भी रिलेशन की फाउंडेशन कौन सा क्विकली रवैया बेहतर करना चाहिए मियाँ बीवी को? जी, सबसे बड़ी बात यह है कि उनको अपना मुस्तकबिल, अपने माँ बाप, अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखते हुए बर्दाश्त करनी चाहिए। बिल्कुल।